welcome back to another video on Arsh Bionems, and in this video we are going to continue the same topic, screening and selection of industrially useful microorganisms. ठीक है, तो ये वाले वीडियो में we are going to study only about secondary screening. Okay, already in the previous video we have been discussing what exactly is screening, what is primary screening and secondary screening, what is the difference between primary and secondary screening, and also different methods to perform primary screening. ये सारी बातें हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ ली है. तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्रोबेबली ये वाली वीडियो भी नहीं समझ आएगी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो, द ओल्ड वीडियो व्हाट आई हैव मेड, द वेरी फर्स्ट वीडियो व्हाट आई मेड ऑन द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रोब. आई वुड ड्रॉप द वीडियो लिंक इन द आई बटन. You can check the video out, okay, and then after understanding that, get back to this particular video wherein you can understand more clearly about what exactly is secondary screening. ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या है. देखो, प्राइमरी स्क्रीनिंग में हमने क्या किया कि प्राइमरी स्क्रीनिंग में देयर इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द नेचुरल सोर्सेज, राइट, लाइक एयर, वाटर, सॉइल. From the natural source, like whatever the natural source you select, like example पहली वाली वीडियो में हमने natural source लिया था soil. So basically in the soil there are many millions of microorganisms. Among those microbial population there are certain important microorganisms present, and we have to identify only those important organisms. Identifying that important organism, growing that important organism in the laboratory is all about primary screening. ठीक है. Now when I say that the organism is important, how can I tell that? That important organism should produce some important product. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये प्रोडक्ट टॉक्सिक भी तो हो सकता है ना, वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट, वेदर हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक यू नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल आई नीड. तो ये सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच वी हैव आइडेंटिफाइड इन प्राइमरी स्क्रीनिंग, एंड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोडक्ट, everything about the product, like structure of the product, quality of the product, toxicity of the product, everything we understand it in secondary screening. तो जो primary screening में हमने किया उसी का continuation है secondary screening. ठीक है, why are we doing this is because once we understand the importance of that organism and the importance of that particular product, we can use the product and the organism at industrial level. ठीक है, हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट वैक्सीन बनाने में काम आ जाए, या कोई एंटीबायोटिक बनाने में काम आ जाए, कोई भी चीज बनाने में काम आ सकती है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बाय सेलेक्टिंग दैट ऑर्गेनिज्म इन प्राइमरी स्क्रीनिंग, एंड देन कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्रोडक्ट इन सेकेंडरी स्क्रीनिंग. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर ली थी, तो ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सेकेंडरी स्क्रीनिंग के बारे में. ठीक है, नाउ सेकेंडरी स्क्रीनिंग ऑलरेडी सी आई हैव गिवन यू द पॉइंट्स इन द अर्लियर वीडियो, यू कैन फॉलो द सेम पॉइंट्स, द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ओके, सो द मेथड्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो is Jane colony technique, filtration method and liquid medium method. Now in Jane colony method, the organism what we need here to perform this particular concept is Streptomyces. Now what exactly are we doing here in the Jane colony method is isolation and detection. ये थोड़ा सा इरेज हो गया. Detection of antibiotics that diffuses through solid media. Okay, so what are we gonna do is understanding the activity of antibiotic by performing this method. ठीक है, like for example कोई एक organism मुझे मिला है, वो organism antibiotic produce कर रहा है. क्या वो antibiotic seriously important है? क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं? क्या हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर हम उसे यूटिलाइज करते भी हैं तो क्या वो एंटीबायोटिक सॉलिड मीडिया में ग्रो करेगा? तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट वी हैव रिलेटेड टू एंटीबायोटिक. सो यू नो दिस वेरी फर्स्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक कैन दिस एंटीबायोटिक डिफ्यूज इन द सॉलिड मीडिया? This particular thing we can understand it by performing Jane colony method. It could be any organism. We can perform this experiment for any organism which is producing antibiotic. As an example we have taken Streptomyces in this particular case. ठीक है, तो Streptomyces क्या करता है? Streptomyces
streptomyces is producing certain antibiotic and I want to understand the effectiveness of this particular antibiotic. ठीक है, क्या वो एंटीबायोटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है या नहीं, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक बोल रहे हैं तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को उसको इनहिबिट करना होगा. दैट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक, इजंट इट? वही हमें यहाँ पे चेक करना है इन जेंट कॉलोनी मेथड. सो हियर व्हाट आर वी डूइंग, आई एम टेकिंग अगार प्लेट बिकॉज व्हाट वी आर चेकिंग हियर इज in this particular method antibiotic that can diffuse through solid media. So when I am telling solid media, solid कब होगा nutrient media? When we add agar into it. So it is agar plus nutrient media. If I remove agar, if I don't add agar into the nutrient media, then it will become liquid media, which we call it as broth. This is nutrient media. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? In this solid media, basically we have taken a solid media, and in this solid media, I am streaking streptomyces organism here right in the center of the plate. तो मैंने streptomyces के organism को सेंटर में ग्रो कर दिया. ठीक है, फिर साइड में हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं. तो यहाँ साइड होता है ना, जो प्लेट्स के साइड्स होते हैं, वहां पे हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर रहे हैं. टेस्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, टेस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या है? आई एम ट्राइंग टू चेक दी इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक ऑन दोस टेस्ट ऑर्गेनिज्म ओनली. कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ना मुझे देखने के लिए क्या ये एंटीबायोटिक सही में काम करता है या नहीं. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. तो सिंपली यहाँ पे देखो, मैंने 3 टेस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे स्ट्रीक कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो सॉलिड मीडिया में डिफ्यूज होगा कि नहीं. तो यहाँ पे देखो, ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ने यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉलिड मीडिया में फैल जाएगा. ये जो सॉलिड मीडिया है ना, ये जितना भी अगार हमने डाला है, ये एंटीबायोटिक सारा यहाँ पे फैल जाएगा. और जब वो फैल जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाती है, उसका ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, if this streptomyces and this streptomyces has produced antibiotic that got diffused into the media, and if in case लेबल कर देते colony 1, colony 2, colony 3. ठीक है, टेस्ट ऑर्गेनिज्म 1, टेस्ट ऑर्गेनिज्म 2, टेस्ट ऑर्गेनिज्म 3. टेस्ट ऑर्गेनिज्म 1 अगर आप नोटिस करोगे ब्लू कलर है, तो व्हाट इफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. टेस्ट ऑर्गेनिज्म या तो सेंसिटिव भी हो सकता है, टेस्ट ऑर्गेनिज्म या तो रेसिस्टेंट भी हो सकता है. लाइक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लू कलर की कॉलोनी जो है, ये माइक्रोब ऑर्गेनिज्म, जो ब्लू कलर मैंने यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिया, इसकी कॉलोनी काफी कम आई है. इसका मतलब ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ठीक से ग्रो नहीं कर पाई है. सो वन थिंग आई अंडरस्टूड दैट दिस ब्लू कलर कॉलोनी कैन बी सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक विच इज रिलीज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस. फिर नेक्स्ट येलो कलर कॉलोनी ले लेते हैं. येलो कलर कॉलोनी में अगर हमने देखा तो कॉलोनी ग्रो ही नहीं की. तो यहाँ पे ये जो येलो कलर कॉलोनी थी, ये ग्रो नहीं कर पाई इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक. सो दिस येलो कलर कॉलोनी इज कंप्लीटली सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. और नेक्स्ट हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे रेड कलर कॉलोनी की बात करूं, रेड को कोई धक्का भी नहीं लगा, रेड इज लाइक हैप्पीली ग्रोइंग. सो दिस रेड कलर कॉलोनी इज रेसिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक. सो बाय परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट मेरे को तो आइडिया मिल गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस स्ट्रेप्टोमाइसिस के एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट है और कौन सा ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस के एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड एंड वी आल्सो गॉट एन आइडिया दैट दिस एंटीबायोटिक कैन डिफ्यूज इन द सॉलिड मीडिया. अगर ये डिफ्यूज नहीं करता, तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रो करते है ना, बट इसने डिफ्यूज किया. डिफ्यूज करके इट ट्राइड रीचिंग आउट टू द टेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली बिकॉज इट रीच्ड आउट टू द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस इज हाउ इट रीच. टेस्ट ऑर्गेनिज्म में यहाँ इसने रीच किया एंड दैट इज हाउ वी केम टू नो बाय अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. अगर वो रीच नहीं करता, देन ऑल द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड ग्रो हैप्पीली विदाउट एनी डिफेक्ट. ठीक है, क्योंकि दैट हैज रीच्ड द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज हाउ वी केम टू नो विच वन इज सेंसिटिव एंड विच वन इज रेसिस्टेंट, जस्ट बिकॉज इट गॉट डिफ्यूज्ड इनटू द मीडिया. सिंपल एज दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड. अब क्या करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि दिस एंटीबायोटिक कैन इजीली डिफ्यूज इन द सॉलिड मीडिया. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इफ द एंटीबायोटिक कैन बी ग्रो दैट इन द ब्रॉथ मीडिया, लाइक यू नो द न्यूट्रिएंट मीडिया माइनस agar. If we don't add agar, that will become broth. So in filtration method what we are doing, detection of antibiotic
which are poorly soluble in water और that does not diffuse in solid media. बेसिकली जो लिक्विड मीडिया है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक उतना ही एक्टिव रहेगा या नहीं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया न्यूट्रिएंट मीडिया, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया. लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ब्रॉथ, इसको हम ब्रॉथ भी कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिस को ग्रो कर लिया. राइट, अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करेगा इन दिस न्यूट्रिएंट लिक्विड मीडिया, ब्रॉथ में ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना मेरे पास जिसमें ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे हमने कौन सा बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस. Streptomyces is basically grown in the broth, so the streptomyces will produce antibiotic. अब हमने क्या करना है, फिल्टर कर देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस को अलग कर देना है. तो यहाँ पे जब हम फिल्टर लेते हैं, जब हम फिल्टर करते हैं, we have to take filtrate. So in this filtrate I will have only antibiotic. तो यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेती हूँ. So you see, स्ट्रेप्टोमाइसिस को हमने अलग कर दिया and all I have taken is only antibiotic प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोमाइसिस. अब ये जो एंटीबायोटिक है टेस्ट ट्यूब में वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. आई वांट टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक एट डिफरेंट डाइल्यूशंस. अब जैसे कि जब हम टैबलेट्स खाते हैं, टैबलेट्स में भी मेंशन होता है ना कि 500 mg, 250 mg, 100 mg. तो ये क्या होता है, सब कॉन्सेंट्रेशन होता है. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना इफेक्टिवनेस भी रहेगा. बट अपेरेंटली वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कम कॉन्सेंट्रेशन में क्या ये एंटीबायोटिक उतना ही इफेक्टिव है या फिर ओनली इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट इज इफेक्टिव और नॉट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वी आर डाइल्यूटिंग दिस एंटीबायोटिक. तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई विल राइट हियर इज, लेट मी राइट इट एज लेस कॉन्सेंट्रेटेड या पूरली कॉन्सेंट्रेटेड. मतलब एंटीबायोटिक इसमें बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, पूरली कॉन्सेंट्रेटेड और वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन. And the third test tube, let me label it as high concentration. ठीक है, ये मैंने डिफरेंट डाइल्यूशंस बना लिए. अब ये डाइल्यूशंस को मैं क्या करूंगी, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करूंगी, विच इज सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया विच विल हैव अगार प्लस न्यूट्रिएंट मीडिया. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे एंटीबायोटिक, ये जो एंटीबायोटिक के डाइल्यूशंस है, ये डाइल्यूशंस को मैंने अगार के साथ साथ ग्रो कर दिया. नाउ ऑन दैट अगार प्लेट आई एम ट्राइंग टू ग्रो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मे बी टेस्ट ऑर्गेनिज्म 1. ठीक है, ये जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म 1 जो मैं ग्रो कर रही हूँ इन पूरली कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया, मे बी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाया, थोड़ा थोड़ा ये ग्रो कर पाया. इन द मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड बहुत कम ये ग्रो कर पाया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में ग्रो ही नहीं किया. सो विद दिस आई विल गेट एन आइडिया कि यू नो एट विच कॉन्सेंट्रेशन द एंटीबायोटिक इज मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स दैट टेस्ट ऑर्गेनिज्म. तो पहले हमने सॉलिड मीडिया में भी देख लिया, हमने लिक्विड मीडिया में भी देख लिया. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इवन इन पूर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंटीबायोटिक दे विल नॉट ग्रो. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेट में भी ग्रो कर सकते हैं. तो ये हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंटीबायोटिक विच ऑर्गेनिज्म इज हाईली सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट. ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लूं, ऑर्गेनिज्म 2, टेस्ट ऑर्गेनिज्म 2, पूर कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो पूरली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना एंटीबायोटिक का, उसमें भी ये ग्रो करे ही ना, हो सकता है कि वो दिस विल नॉट ग्रो, टेस्ट ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो. तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फॉर दैट एंटीबायोटिक डाइल्यूशन. दिस इज व्हाट वी गेट एन आइडिया अबाउट. तो जब ये पूर कॉन्सेंट्रेशन में ही ग्रो नहीं कर रहा तो मीडियम और हाई में तो चांस ही नहीं है उसका, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेथड से यह पता लगता है. नाउ द थर्ड मेथड इज, after filtration method, the third method what we follow is liquid medium. Now in liquid medium what we are doing is I am trying to grow streptomyces. देखो ये मैंने streptomyces को grow कर लिया है in broth. Streptomyces in broth. Broth is what? Nutrient media minus agar. Okay, तो इस broth में streptomyces हमने grow कर दिया है. And now what I will do is I will take small samples and I will perform different analysis. तो I am taking samples to perform different analysis, various analysis. जैसे कि देखो मुझे पता लग गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिस का एंटीबायोटिक अच्छा है, क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, बट
आई नीड टू अंडरस्टैंड, देखो अगर फ्यूचर में मुझे एंटीबायोटिक चाहिए फिर से, तो मुझे मेरे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस भी तो होना चाहिए ना. विदाउट स्ट्रेप्टोमाइसिस हाउ कैन आई ग्रो एंटीबायोटिक? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय थर्ड मेथड नाउ, दैट कैन आई आइडेंटिफाई द suitable मीडिया फॉर दैट स्ट्रेप्टोमाइसिस. तो ये स्मॉल सैंपल लेके मैं दूसरे दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करूंगी. जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया पे स्ट्रेप्टोमाइसिस अच्छे से इजीली ग्रो कर पाता है, दैट मीन्स दैट इज अ suitable nutrient media for that streptomyces. So with this small sample, I will check the suitable media for streptomyces growth. Then I can understand if the antibiotic is new or old one, whether it is already discovered या described, already इसके बारे में पता है क्या ये new antibiotic हमने अभी पहचाना है. Identify pH. I will take small sample of streptomyces, grow it in the broth with different pH. जो भी pH में growth बहुत अच्छे से होती है, that is the pH for that specific streptomyces species. ठीक है. Then I will check the solubility, whether it is soluble in water, whether antibiotic is soluble in acetone या फिर alcohol, ये हम चेक करते हैं. ठीक है. कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं बेसिकली अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंड ऑल्सो वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस इन डिटेल. ओके. देन आई विल चेक इट ऑन एनिमल्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स. तो एनिमल्स में चेक करने पे हमें ये टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगता है, वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट, विच डाइल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी टॉक्सिक टू दैट एनिमल, या फिर लेस डाइल्यूशन वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट, कौन से एनिमल्स पे ये टॉक्सिक है. तो ये सब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर product and that particular organism we get it by liquid medium method. So secondary method में this is what we do. First we grow it in solid media, then we identify in liquid media, and then finally the liquid media method to get detailed analysis of that particular product and the organism. तो ये हो गया secondary screening वाला part. I hope you understood. मैं थोड़ा सा zoom out कर देती हूँ. हाँ, ये हो गया सेकेंडरी स्क्रीनिंग. तो ये वाला वीडियो बच्चे पूछ रहे थे, 2-3 बच्चों ने पूछा है, तो वीडियो इज अप हियर गाइस. कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो नो डाउट आपको समझ आ गया होगा, बट येस गाइस, बिकॉज यू नो आई हैव बीन अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, बट इट हैज बीन वेरी लॉन्ग टाइम नाउ दैट आई रेड माइक्रोबायोलॉजी. बट ये वाले कॉन्सेप्ट जितने भी मेरे को याद थे, मेरे पास जितने भी नोट्स थे, मैंने ढूंढ के करके बना दिया. बट बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम, do follow my video for the conceptual part. Apart from that, whatever your teacher has been teaching you, your degree teacher has been teaching you, उसको combine करते हुए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना. बट कितना भी यार थियोरी एग्जाम है ना, पेपर प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट होना चाहिए, बिकॉज द पीपल हु आर करेक्टिंग योर पेपर विल नॉट हैव टाइम टू रीड ईच एंड एवरीथिंग. सो इफ योर पेपर प्रेजेंटेशन इज लाइक वेरी एक्यूरेट, डायग्राम में आप सब कुछ समझा रहे हो, तो वो बस डायग्राम देख के आपको मार्क्स दे देगी. तो इतना अच्छा आपको प्रेजेंटेशन रखना है. ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट यू गाइज, स्टे सेफ, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन. बाय बाय.